All right, we're getting in some breaking news now. The Congress is under fire over a press release issued by the Sukhu government in Himachal Pradesh. Many are now calling this the latest faux pas of the Sukhu government. What are we talking about? A state government press release hailed Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu for becoming the first Chief Minister to address UK's upper house of Parliament, the House of Lords. In fact, let me read out an excerpt of that press release to you. And this is exactly what has been stated. This particular press release talks about Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu has created history by becoming the first Chief Minister in the country to address the House of Lords. The House Lords, the spelling incorrect there, London. He delivered his keynote address yesterday evening at a summit hosted by the Indo-European Business Forum. Now, has he indeed become the first Chief Minister is a very valid question. Because what has happened following this is that the leader of opposition there, of the BJP, has issued a detailed fact check to the Chief Minister of Himachal Pradesh. Now, the leader of opposition had emailed, it turns out, the representatives of the House of Lords who claimed that there was never any official address by Sukhwinder Sukhu at the House of Lords, and the address was at a private event where the House of Lords was only used as a venue, and this was not an official engagement. Here's the detailed mail trail that we're talking about. This is the mail trail. This is Jairam Thakur, who's written to the House of Lords press office on the 2nd of October 2025. He in fact says, yes, this is exactly the 2nd of October, where he says, I'd like to inquire whether between 21st September to 25th September 2025, the Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Mr. Sukhwinder Singh Sukhu, addressed your esteemed House of Lords and was honored there. If so, may I request you to provide the details of the program. That's, of course, the first letter that goes in. The response then comes in to Dr. Singh. Jairam Thakur's response says it appears this was a private event hosted by the Indo-European Business Forum, not arranged by the House of Lords. You'll have to approach them for details of the event and for photography. And there's another email that has also been sent. If we can quickly bring that up on the screen as well. And this is the second response coming into this. Thank you for your response. May I respectfully seek your clarification whether this event was indeed an official address to the House of Lords or if it was a different nature. The response from the House of Lords press office is that thanks. No, it was not an official address. Regards, Louise. So this is, of course, what has been stated. Let's quickly listen in to what Jairam Thakur had to say. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूरे प्रदेश के अंदर झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं और ये झूठ बोलने का क्रम विधानसभा के अंदर ही नहीं, विधानसभा के बाहर भी इसी प्रकार से सार्वजनिक मंचों पर पूरे प्रदेश ने एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। इस प्रेस नोट में बड़ा साफ शब्दों में ऊपर लिखा हुआ है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने और उस मेल में बड़े साफ शब्दों में कहा है कि इस प्रकार से कोई भी मुख्यमंत्री का, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का संबोधन वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इसमें नहीं हुआ है। However, interestingly, the Congress has now come out to defend the Chief Minister Sukhu. They admit that this may have been a mistake from the Himachal Chief Minister's office, but Sukhu cannot be blamed for it and that the BJP must not politicize the matter. Listen in. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने आप कोई बयान नहीं दिया, उनके ऑफिस ने बयान दिया है। उनके ऑफिस का प्रेस रिलीज है। ज्यादा बेहतर तो यह है कि सुक्खू जी ही इस मामले में अपनी राय दें, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन सकता है। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि इस मामले में मेरी कोई जानकारी नहीं है। सुक्खू जी को ही चाहिए कि वो इस मामले में अपना कोई बयान दे। मुमकिन है उसके ऑफिस से कोई गलती हुई हो। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, let's go across to our guest now. Joining us is Jairam Thakur, Himachal leader of opposition and the former Chief Minister of Himachal Pradesh. We also have Manish Bariyar, who is a political analyst, joining us. Advocate Nikhil Jain is a political analyst also with us. Advocate Kaushal Mungta, Congress leader, is with us on the show. In fact, let me begin with Advocate Kaushal Mungta. Kaushal Mungta, ये आखिर हुआ क्या है?
अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित नहीं किया है मुख्यमंत्री जी ने, तो व्हाई इज इट देयर इन द प्रेस रिलीज दैट हैज कम आउट टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर? Has there been a deliberate lie that has been spread, as Mr. Jairam Thakur is alleging? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम को संबोधित करने वाले, हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इतने बड़े फोरम पर प्रदेश की आवाज रखने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, 28 स्टेट में कोई मुख्यमंत्री इतने हाथ पैर नहीं चला रहा है। एक छोटा सा स्टेट। All right, we lost that line there. Let me quickly bring in Jairam Thakur, who's now with us. Jairam Thakur जी, क्या कहना चाहेंगे कौशल मुंगटा से? वो कह रहे हैं कि ये इंडो यूरोपियन बिजनेस काउंसिल की मीटिंग थी, इन्वेस्टमेंट लाने की मीटिंग थी, और राशिद आलवी भी हमारे साथ कुछ समय पहले हमें बता रहे थे कि ये हो सकता है उनके ऑफिस से गलती हुई हो, मुख्यमंत्री जी को आके क्लैरिफाई करना चाहिए। क्या कहेंगे जयराम ठाकुर जी? देखिए, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री के ऑफिस से ये गलती नहीं, जानबूझ करके इस प्रकार का प्रचार का अभियान चलता है। जो सत्य नहीं है वो बोलते हैं, जो सत्य नहीं है वो सत्य साबित करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और हमने एक बार नहीं अनेकों बार देखा कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, सभाओं में और पूरे देश भर में जहां भी जाते हैं झूठ बोल करके आ जाते हैं। और आपको मैं उदाहरण देता हूं, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक सबूत के तौर पर जब मैंने इनकी गारंटी का जिक्र किया, जो 10 गारंटी चुनाव से पहले इन्होंने दी थी, उन गारंटियों का जिक्र किया, मैंने कहा कि इस पर आपको क्या बोलना है? तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये गारंटी तो हमने कभी नहीं दी है, इस तरह से बोला ही नहीं है कि हमने ये गारंटी जो है 1 साल में पूरी करनी है, 2 साल में पूरी करनी है। जबकि जो गारंटी पत्र है मैंने ले किया हाउस में, स्पीकर ने ऊपर से पढ़ करके एक एक शब्द उसमें से सुनाया और उसके बाद मुख्यमंत्री की स्थिति हास्यास्पद हो रही, यानी कि झूठ बोला। और झूठ बोलने की आदत उनकी बहुत ज्यादा है, यानी कि कोई भी उनकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं, उनकी जो मित्र मंडली है उसके सिवाय कोई विश्वास नहीं करते। अब आप बताइए, बजट अनाउंसमेंट होती है, बजट जब प्रस्तुत किया, बजट में कहा कि डीए जो है आपके मई के महीने में दे देंगे, मई जून के महीने में दे देंगे, और उसके बाद अप्रैल में फिर से अनाउंस करते हैं कि दे देंगे। लेकिन अगला अप्रैल आने वाला है, अगला बजट आने वाला है, अभी तक डीए हिमाचल प्रदेश में अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला है। जबकि ये बजट अनाउंसमेंट तो कमिटमेंट होती है, टॉप प्रायोरिटी उसको मिलती है, और बजट का प्रोविजन बाकी जगह से काट करके मुख्यमंत्री की जो हाउस में जो एक कमिटमेंट होती है, अनाउंसमेंट होती है, एश्योरेंस होती है, उसको पूरा किया जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, और इतना जो है निर्लज होकर के, मैं कहूं निर्लज होकर के झूठ बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ऑल राइट, कौशल मुंगटा, रिस्पॉन्ड टू दैट, बिकॉज निर्लज होकर झूठ बोल रहे हैं, हाउस में भी झूठ बोलते हैं, अपने वादे कभी पूरे नहीं करते, ये आरोप आ रहा है आपके नेता प्रतिपक्ष का। क्या जवाब देंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे 1 मिनट कम से कम बोलने देंगे। पहली बात तो ये है कि क्या ये भी झूठ है कि आउटलुक मैगजीन, जो कि देश की प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसने चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड सुक्खू साहब को दिया? क्या ये भी झूठ है कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सुक्खू साहब के पीठ दबाते हैं? क्या ये भी झूठ है कि वर्ल्ड बैंक सुक्खू साहब की तारीफ करता है? क्या ये भी झूठ है कि देश का एकमात्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 7 लाख रुपए आपदा में प्रभावित परिवारों को दिए? क्या ये भी झूठ है कि जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ द ईयर, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरे प्रदेश के अंदर दिया है? सुन लीजिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, प्लीज आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, मिला अभी तक मुझे भी मौका दीजिए सर। और 1500 करोड़ की घोषणा करते हैं मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, और 1 रुपया, मैं कहता हूं कि 1 रुपये भी उनकी घोषणा के बाद अभी तक जो है स्टेट के अंदर नहीं पहुंच रहे, जो कि इतना हास्यास्पद है। कितने बड़े पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी घोषणा पूरी नहीं हो रही है। अब रही बात इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम की, उसको आज तक ने दिखाया, जो कि देश का प्रतिष्ठित चैनल है, उसमें वीडियो फुटेजेस है, उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे साहब ने, दूसरे मीडिया ने क्या दिखाया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे एक सीधा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कौशल जी, यदि हम मान ले, एक सेकंड कौशल जी, अब आपकी बात आपने सुन ली,
अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिंपल बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि हम मान लें कि आप जो कह रहे हैं सब कुछ सही कह रहे हैं, सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि सितंबर में और 24 सितंबर की प्रेस रिलीज है, इसमें साफ लिखा है, आपके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पे के वेबसाइट पे है ये, चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन कंट्री टू एड्रेस हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन। ये तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है सर स्टेटमेंट। सुन लीजिए, सीएम ऑफिस, मैंने थोड़ी देर पहले ही सीएम ऑफिस में बात की है, जो सुक्खू साहब के जो हमारे पूरे पेजेस को हैंडल करते हैं, उनके ऑफिस से किसी प्रकार की ऐसी कोई सूचना नहीं निकाली गई है, ना किसी प्रकार से सीएम ऑफिस से सूचना निकाली है। सर वेबसाइट पे अखबार है प्रदेश के, फोरम के नाम से ही छापा है। कौशल जी, मैं बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैंने खुद वेबसाइट पे अभी थोड़ी देर पहले, अराउंड 1 घंटे पहले, ये प्रेस रिलीज खुद देखी है, मैं आपको बता सकता हूं, इट वाज ऑन। I don't know if it has been removed now. We'll check that for you indeed and we'll put that out as news also. But जयराम ठाकुर जी, ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी ही नहीं की गई है, ये कहना है कांग्रेस का, क्या कहेंगे आप? एक और झूठ, क्योंकि सारी टोली इनकी झूठ बोलने वाली है। ये पूरा मित्र मंडली जो है बहुत सजा करके झूठ बोलते हैं, मैंने पहले भी कहा है। और मैं दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं, अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया है तो मुझे बताइए कि क्या उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इन प्रोग्रेस थी, हाउस चला हुआ था क्या? ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। हाउस था ही नहीं, पार्लियामेंट नहीं चल रही थी उस वक्त जी। वहां पार्लियामेंट में क्या होता है कि वहां वो किराए पर जो है पैसा ले करके कुछ किसी इवेंट को करने के लिए देते हैं थोड़ी देर के लिए, और वहां पर वो इस प्रकार का फंक्शन हुआ, इस बात को इनको स्वीकार करना चाहिए। जबकि तो खुद कह रहे हैं सर, हाउस ऑफ खुद कह रहे हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने का विषय नहीं है जी। लेट मी ब्रिंग इन अदर पैनलिस्ट नाउ, लेट मी ब्रिंग इन अदर पैनलिस्ट। निखिल जैन, देयर वाज नो एड्रेस टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। I mean, maybe you got a little carried away, but you can't be so far away from the truth. You know, the fact is that the House of Lords has responded to Mr. Thakur's mail. Jairam Thakurji has sent a mail to the press office of the House of Lords, and they very specifically clarified that this was a private event that was organized. So why this bluster then? So Madhav, let's make this one thing very clear. There has been no direct or personal statement made by the Chief Minister, by any minister of the Himachal government, by any MLA of the Congress, any senior leader of the Congress, claiming or asserting that... Let me just fact check you right here. Let me fact check you right here, because both of you are being very economical with the truth, Mr. Nikhil Jain as well as Mr. Kaushal Mukta. Here is a tweet of Sukhwinder Singh Sukkhu. This is on social media platform X. लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। And he's going so on and so forth. Let's quickly scroll it down and show you the date in which this has happened. If I can quickly request my team to scroll down. This is going to be in September of 2025. And this is a tweet that he has put out. There is separately a press release that has come in from the information department, which has specifically said he has created history by becoming the first chief minister to do so. So Nikhil Jain, please, let's not play fast and loose with the truth. No. Let me please complete the point that I'm making. The point that I'm making is that you have just read out the tweet by Sukhwinder Singh Sukkhu, wherein he's clearly saying that I addressed the event conducted by the Indo-European Business Forum. He's not saying that I've addressed the members of Parliament or the members of the House of Lords. So far as the press release by the Himachal government is concerned, yes, it does mention that Sukhwinder Singh Sukkhu addressed the House of Lords, which is erroneous, which is incorrect, which is also what the Congress has admitted. It is indeed what you started the debate with. It is a faux pas, but it is a faux pas on the part of bureaucrats. No, Madhav, I don't sit here and lie. I don't like to play easy with the truth. I like to speak the truth. It is a faux pas. It is a fault of the government of Himachal Pradesh. But is it really something that we need to be talking about? Okay. Is it so important? Manish Bharia, it's a faux pas. It's a faux pas, but why should we be talking about it? He's just the chief minister of a state. Anybody can make a faux pas. Please respond. Why should CM of Himachal, in fact, talk about House of Lords itself? Right? House of Lords is a relic. It's of no significance to UK itself. Why does he even mention House of Lords? That I am really surprised. That shows the colonial mindset of Congress party. And I'm not surprised
Because even Rahul Gandhi does all sorts of funny things when he goes abroad. Right? Sometimes he goes to Colombia, sometimes he goes to some other country, and he keeps ranting out things. So it's a Congress culture. You go outside, you get into some university, some place which is insignificant, and then you say things. But I would like to remind Mr. Kaushalji, is it also a lie that Himachal Pradesh has a debt of 90,000 crore? Please clarify. Is that also a lie? और पिछले साल 3 महीने आपने सैलरी नहीं दिया, क्या वो भी झूठ है? वो भी बता दीजिए। जवाब दीजिए कौशल। तो अपना राज्य तो ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, अपनी चीजें ठीक से कर रहे हैं, यूके जाके इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, भारत के लोगों को बुला ही नहीं रहे अभी इन्वेस्टमेंट के लिए। कौशल, यूके से कौन आने वाला अभी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके यहाँ? पहले तो उनको यहाँ पर अपने लोगों को इन्वेस्ट करानी चाहिए थी। ओके कौशल प्लीज। जाते हो आप। देखिए, ये जो भाजपा के अनऑफिशियल प्रवक्ता यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, पहली बात तो मैं इनको बता दूं, 45,000 करोड़ का ऋण था जब वीरभद्र सिंह जी सरकार छोड़ के गए थे। उसके बाद आदरणीय ठाकुर जयराम जी की सरकार बनी, हमको 75,000 करोड़ के ऋण के बोझ के तले छोड़ा गया, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में है। उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। 45 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात को। और ये कौन सी ऐसा प्रदेश है Jairam जो तले नहीं दबा है? Okay, I have to give Jairam Thakur a quick chance to respond to that, and my team is just getting back to me that that this is very much there of the website. Right, Jairam Thakur जी, you कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिलीज ही जारी नहीं हुई। सबसे पहले तो उसका जवाब दीजिए। नहीं, इनको सीधी बात कहनी चाहिए कि गलती हुई है और इस गलती को स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री को अपॉलोजाइज करना चाहिए कि अगर उनके ऑफिस ने गलती की है तो उस पर नहीं जिद करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, सदन के अंदर भी झूठ बोलते हैं, बाहर भी झूठ बोलते हैं, देश से बाहर भी झूठ बोलते हैं। और ये सच्चाई है कि इनके नेता राहुल गांधी से सीखा है इनने। All right, let's leave it there, sir. Completely out of time. Jairam Thakur, Manish Pariyar, Advocate Nikhil Jain, as well as Advocate Kaushal Mungta. Thanks so much for joining us this evening.